Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing great. It's me, Sayyida Maliha Zainab Hashmi, and I'm going to be your instructor for this summer session. And the subject that I'll be teaching you is Introduction to Literary Studies. The lectures are going to be bilingual, this and the follow up lectures. That is, we'll be dealing with the lectures in two languages, English and Urdu. So, without wasting any other second, let's get started with it. So this is first lecture on introduction of literary studies, and when we are talking about introduction to literary studies, we are basically dealing with the literary studies of England, the English literature literary studies, and for that we definitely have to have go through the history of the literature, because without the history we are nothing. Without the history we cannot explore the writers, not explore the writings, not explore the critiques, not explore the critical analysis, critical appreciations, exploitations of the text, and many more. So if I'm talking about the history, let's right away jump to the Renaissance period, which was the period of the rebirth, which was the period right after the Middle Ages. Before Renaissance, it's the Middle Ages, and before that, we are talking about Old English period, Old English times. Definitely, in detail, you will be studying that or would have already in history of English literature. It is just introduction, so let's get started with it. So, in the first part, I'm talking about the background, a little historic background to the Renaissance period in English literature. So, if I'm talking about this Renaissance period in English literature, I'm talking about some 1500s to 1600s. Now, always remember this thing, my dear students. If you're talking about English literature, and history of English literature in particular, you must have this question right from the very start, because in different books we have different dates. The dates are a mix, so we are a kind of confused which date to follow. Always remember, beta, the dates of English literature and the periods, the dates of the periods of different or the ages of different ages of English literature are always a blurry line. It's not that right away एक जगह पे एक डेट खत्म हो रही है और right away उधर से ही दूसरा पीरियड स्टार्ट हो रहा है. It's never like that. It's always a hazy, a blurry line. जैसे रेनबो होती है ना, 7 रंग तो होते हैं धनक के रेनबो के, yet उनके वो रंग एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स हुए थे. Same goes with the ages as well. So some people take the ages where the period somehow started, whereas some scholars have taken the ages where the period was a little more prominent. So it differ, right? That is why dates are always different. So don't worry for that. I just wanted to clear this query in the very start. Anyways, एक और query clear करती हूँ. If you're talking about 1500s, we are of the view that it's the 15th century. And if you're talking about 1600s, we are of the view that it's the 16th century. अब ये sorry, misconception भी थोड़ी सी clear करूँ. From 1501 up till 1600, it's always the 16th century, because 1501 is following and moving towards 1600s. That's why we term it as 16th century. तो हमेशा याद रखो बेटा कि अगर हम 1400s की बात कर रहे होंगे तो that means from 1401 to up to 1500, it's going to be the 15th century. इसी तरह बेटा अगर हम 1500 की बात करेंगे तो वो 16th century की, क्योंकि हमें पता है आज कि 1501 से लेके 1600 तक सारी सेंचुरी हमारे पास 16th होगी, क्योंकि वो 16th की तरफ प्रोसीड कर रही है, 1600s की तरफ प्रोसीड कर रही है. 1600 तक तो ठीक है. इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि 1601 से लेके 1700 तक, तो दैट इज़ द 17th century, and always remember that in your mind. तो जब मैं आपको कहूँ कि 16th century, you must have this thing in mind, gets from 1501 to 16. And same is the case with the centuries which are coming after it and the centuries which were before it, right? अब बेटा एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि रेनेसां पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में एलिज़ाबेथन पीरियड और एज ऑफ शेक्सपियर से भी जाना जाता है. तो कहीं पे अगर एमसीक्यू में या कोई पूछ ले या कहीं पे लिखा हो कि द एलिज़ाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर
और शेक्सपियरियन पीरियड, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. यू मस्ट नो इट इज़ द रेनेसां पीरियड, राइट. ये क्यों है, इसका जवाब मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में दूंगी जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. तो डोंट यू वरी, होल्ड ऑन विद योर क्वेश्चंस. राइट, अब हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की. सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डज दिस टर्म रेनेसां मीन्स. द टर्म रेनेसां मीन्स rebirth, symbolizing the revival of humanism, a movement that placed emphasis on the human experience, education, and the exploration of new ideals, all while rediscovering classical antiquity. ये बात बेटा आप हमेशा याद रहे. रेनेसां का मतलब है रीबर्थ. रीबर्थ किस चीज़ की, हमेशा इस बात को याद रखें बेटा. रेनेसां पीरियड से पहले मैंने आपको कहा 2 एजेस गुजरे हैं. एक मिडिल एजेस था और इससे पहले ओल्ड इंग्लिश एज था. अगर हम मिडिल एजेस की बात करें, उसको द पीरियड ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है, या द डार्क पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है. वजह यह है कि बेटा रेनेसां से पहले जितना भी वक्त गुजर चुका है, उस सारे वक्त के दौरान द बेसिक एम्फेसिस वाज ऑन द रिलीजन, ऑन क्रिश्चियनिटी, बेसिकली ऑन द चर्च, द कैथोलिक चर्च. उस वक्त की थीम्स को अगर देखा जाए, उस वक्त की रीडिंग्स को, वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ ह्यूमनिज़म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इंसान को उसकी इंसानियत का कोई इख्तियार नहीं था. वो ऐसा पीरियड था जिस वक्त, यहाँ तक कि अगर हम रिलीजन की बात की, उस वक़्त का रिलीजन, बाइबल वॉज रिटन इन लैटिन. बेटा बाइबल जो है वो लैटिन में लिखी गई थी कहने, और लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द हायर अप्स. अब हर नॉर्मल इंसान लैटिन नहीं समझ सकता था, लैटिन नहीं पढ़ सकता था. इसका मतलब है कि उनका जो रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट था, जो रिलीजियस राइटिंग थी, वो नॉर्मल इंसान तो पढ़ ही नहीं सकता था. इसीलिए इंसान को ना क्वेश्चन करने का अख्तियार था, ना सवाल जवाब, मतलब क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता था, ना सोचने समझने की सलाहियत इस्तेमाल करने का अख्तियार था, ना किसी और चीज़ की तरफ, कोई और थीम आपको नहीं मिली, किसी भी तरफ जाने का अख्तियार नहीं था. उसको सिर्फ जो चर्च, और उस मिडिल एजेस में जो चर्च का हेड होता था वो पोप होता था, और पोप वॉज द, मतलब वो सबॉर्डिनेट टू गॉड था ज़मीन पे, और पोप के पास सारा इख्तियार था कि वो बाइबल को पढ़े समझे, और जैसा जैसा पोप कहे लोगों को वैसे फॉलो करने. पीपल हैड नो इनसाइट ऑफ, इसका मतलब. और फिर उस वक़्त जितना भी आर्ट था, जितना भी लिटरेचर था, इट वॉज मोस्टली रिगार्डिंग द आफ्टर लाइफ, आखिरी ज़िंदगी, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिविनिटी. इस तरह मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट थे कि जिसमें सिर्फ आपको मोरालिटी दिखाई जाती थी, और मोरालिटी इन टर्म्स ऑफ हमारे पास रिलीजन आ जाता था, सारी चीज़ें, एवरीथिंग. और या ये चीज़ होती थी, जितना भी लिटरेचर था, आइदर इट वाज रिलीजियस सेंट्रिक, और या ये ग्रेट किंग्स की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने में. तो जितने भी ये जो हमारे पास क्रॉनिकल रिकॉर्डिंग्स आती थी, क्रॉनिकल रिकॉर्डिंग्स मतलब हिस्ट्री लिखी जाती थी, तो आइदर इट वाज हिस्ट्री, आइदर इट वाज रिलीजन. एंड रिलीजन भी वो रिलीजन जिसका कॉमन मैन को, किसी को, आप और मैं जैसे हम कॉमन मैन हैं, हमें कोई सूझ समझ नहीं है, बस जैसा बता दिया गया जानवरों की तरह वैसे ही फॉलो करना है. इसलिए उस वक्त को कहा जाता था द टाइम पीरियड ऑफ डार्कनेस या एज ऑफ डार्कनेस, क्योंकि उस वक्त ह्यूमन माइंड बेसिकली वॉज इन डार्कनेस, human could not explore the different dimensions of its mind, definitely his mind, sorry. इस वजह से अब जब रेनेसां पीरियड आया, इट वॉज द रीबर्थ ऑफ ह्यूमनिज्म. रीबर्थ ऑफ ह्यूमनिज्म से मुराद बेटा ये है कि जो ह्यूमैनिटी है उसकी दोबारा से, ह्यूमन माइंड की रीबर्थ हुई. इंसान ने सोचना समझना शुरू किया, और वो कैसे किया कि एजुकेशन अदर देन रिलीजन आगे प्रोसीड हुई है, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया हुआ है. डिफरेंट क्लासिकल एंटीक्स, डिफरेंट क्लासिक लिटरेचर जो है, क्लासिक पोइट्री, डिफरेंट जो ग्रीक की या जो रोमन एम्पायर से आई हुई है. जाहिर है उस वक़्त जो सबसे टॉप की लिटरेचर था वो द रोमन एम्पायर, जिसे हम कहते हैं बाइजेंटियम, उधर का लिटरेचर था.
उसकी वजह से अब ये कैसे और कहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे ये क्वेरीज हमारी क्लियर होती जाएंगी। फ्रॉम 1500 टू 1600 द वर्ल्ड वॉज रीबॉर्न इन मैनी वेज। अब हम ये रीबर्थ की जो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1500 से 1600 पूरी दुनिया बड़े डिफरेंट वेज में रीबॉर्न हुई थी। हम अगर पूरी दुनिया की बात करें बेटा, ये बात याद रखें, आज जो जिस इंग्लैंड को आप यूके का पार्ट कंसिडर कर रहे हैं ना, उस वक़्त इट वॉज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इंटायर यूरोप, राइट। अब इस बात को अपने जहन में ज़रूर रखना है। अच्छा, द मिडल एजेस इन यूरोप वर फॉलोड बाय द रेनेसां। ज़ाहिर है कि रेनेसां, मिडल एजेस के बाद रेनेसां आ गया, द पीरियड ऑफ द रीबर्थ, जिसमें पूरी दुनिया डिफरेंट वेज में रीबॉर्न हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें से यूरोप में क्या हुआ और फिर स्पेसिफिकली इंग्लैंड में क्या हुआ हम वो देखेंगे। इट वॉज द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम। ज़ाहिर है अदर देन द रिलीजन, other than the Bible, classical learning or different classical literature, different kind of classical poetry, different class types of, अभी आगे हम पढ़ेंगे ना ड्रामा और इन चीज़ों की, इवन के प्रिंटिंग प्रेस, पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था, इसमें बुक्स लिखी गई हैं, प्रिंटिंग प्रेस रिलीज, और भी बड़ी चीज़ें हुई हैं। तो इस चीज़ में ये जो था ना रीबर्थ हुई थी। लेकिन अगर मैं यूरोप की बात करूं तो ये पूरा रीबर्थ का प्रोसेस यूरोप में कहाँ से शुरू हुआ, जनरेट कहाँ से, ओरिजिनेट अगर मैं कहूँ, आई एम सॉरी, कहाँ से हुआ, तो इट ओरिजिनेटेड इन इटली एंड स्प्रेडिंग थ्रू आउट यूरोप। तो बेसिकली ये रीबर्थ का यूरोप में इटली से शुरू होकर फिर स्प्रेड हुआ पूरे यूरोप में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। द रेनेसां बिगैन इन इटली स्पेशली इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सबसे ज़्यादा आर्ट और आर्किटेक्चर, डिफरेंट किस्म की आर्ट, डिफरेंट किस्म की पोइट्री, डिफरेंट किस्म का लिटरेचर, इवन आर्किटेक्चर, ये जो डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट बिल्डिंग के डिज़ाइंस बनाना, डिफरेंट चीज़ों का चेंज आ गया इस चीज़ में। स्पेसिफिकली इटली में स्पेसिफिकली जो रेनेसां रीबर्थ हुई थी वो आर्ट और आर्किटेक्चर की हुई थी, कि आर्ट में चेंजेस आए थे। पहले जो रिलीजियस हिसाब से चीज़ें बनाई जाती है, अब ह्यूमन माइंड को ज़रा थोड़ा एक्सप्लोर करके थोड़ा ब्यूटिफाई किया गया, चीज़ों को थोड़ा चेंज किया गया, इसको रीबर्थ कहा गया। अब एज ये याद रखो, एज इंग्लैंड बिकेम द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द लेट 16th century, न्यू वर्ल्ड्स वर डिस्कवर्ड एंड न्यू वेज ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग डेवलप्ड। क्या हुआ बेटा, और फर्दर क्या कहते हैं, इट प्रॉम्प्टेड रिवाइवल ऑफ लर्निंग एंड इट denoted in its broadest sense the gradual enlightenment of the human mind after the darkness of middle ages। देखो कहते हैं कि जब हमारे पास अगर लेट 16th सेंचुरी की हम बात कर लें बेटा, यानी 1500s के एंड में, तो चूँकि उस वक़्त इंग्लैंड सबसे टॉप नॉच एरिया बन चुका था यूरोप का, वहाँ पे जाहिर है कि उस वक़्त चूँकि रीबर्थ भी चल रही थी यूरोप में, तो इंग्लैंड ने नई दुनियाएं देखी डेवलपमेंट की, अदर देन द रिलीजन, अदर देन एक और चीज़, पुराने ज़मानों में ना मिडिल क्लास टाइम, सॉरी मिडिल एजेस में हमारे पास रिलीजन के अलावा एक रिलीजन था, एक क्रोनोलॉजी थी, यानी हिस्ट्री रिकॉर्ड करना था वो बड़े बड़े लोगों की, सिर्फ बादशाहों की, और एक हमारे पास एग्रीकल्चर, काश्त वाश्त के ऊपर, बस इन्हीं का काम था, और कुछ भी इंसान को इख्तियार नहीं था, और वो भी इख्तियार इंसान के पास नहीं था जो पोप से ऑर्डर्स आ जाते थे, कैथोलिक चर्च से ऑर्डर्स आ जाते थे, बस वो हमें फॉलो करने पड़ते थे। कैथोलिक और चर्च का भी कॉन्सेप्ट मैं आके क्लियर करती हूँ। एनीवेज, अब चूँकि रीबर्थ आ गई तो फिर इट रिजल्टेड इन द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, कि इंसान की लर्निंग का रिवाइवल हुआ, कि उसने न्यू डायमेंशन से न्यू वर्ल्ड को, न्यू चीज़ों को, अपनी रैशनैलिटी को, अपनी अकल, अपने लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए नए एंगल से नई चीज़ों को लर्न करना शुरू किया। अब और क्या हुआ, ह्यूमन के माइंड की जो जहन उसका पस्तियों में, मिडल एजेस के अंधेरों में पड़ा हुआ था, वो इनलाइटन हो गया, रोशन हो गया विद द फॉल ऑफ। अब ये याद रखो बेटा कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 एडी में फॉल हुआ था, तो उस, अब ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में भी आप इसको लिख सकते हैं, और वरना असाइनमेंट पेजेस पर लेकर आएँ कि व्हाट वाज द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एडी। दैट्स योर क्वेश्चन। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड विद द लेक्चर। With the fall of Constantinople in 1453 AD by the invasion of the Turks and the Greek scholars,
who were residing there spread all over Europe and brought with them invaluable Greek manuscripts. The discovery of these classical models resulted in the revival of learning in the 14th and 15th centuries. हुआ क्या था बेटा कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 AD में फॉल हुआ था, तो जितने भी जो टर्क्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स थे, जिन्होंने मतलब ज़ाहिर है जब उनको इन्वाइट किया गया, उस जगह को इन्वेट किया गया, फ़तह किया गया, तो जितने भी जो ये ग्रीक, जितने भी ये जो तुर्क स्कॉलर्स थे जो वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर रिजाइड करते थे, वो पूरे यूरोप में फैल गए। जब वो पूरे यूरोप में फैल गए तो वो अपने साथ तो अपना लिटरेचर, अपने क्लासिकल मॉडल्स, ज़ाहिर है बेटा आप कभी गूगल करो ना तो जो रिचेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर आता है पुराने ज़मानों का, वो ग्रीक से आता है, वो लैटिन से आता है, स्पेसिफिकली ग्रीक कहा जाता है। तो वो अपने साथ अपना, और तुर्कियों का आ जाता है, तो वो अपने साथ अपना इतना हैवी, अपना इतना क्लासिकल लिटरेचर, लिटरेरी मॉडल्स वो उठा के लाए, जिससे कि जो लर्निंग हुई 14th 15th इवन 16th 17th, ये सारी सेंचुरीज अगर आप इसमें काउंट कर लें, तो इसमें जो ये लर्निंग हुई है, ये इस वजह से लर्निंग के न्यू डायमेंशंस आपने डिस्कवर किए हैं कि अदर देन द रिलीजन, अदर देन द चर्च, अदर देन द बाइबल, न्यू टाइप के लिटरेचर्स इमर्ज हुए, न्यू, जिसने कि इंसान को सोचने समझने की सलाहियत दे दी। फिर बेटा दिस पीरियड सॉ अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन आर्ट। अब मैंने आपको बोला ना कि इस पीरियड में किस किस चीज़ का रिवाज है, किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया गया। आर्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, साइंस आई है। पहले साइंस का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, ह्यूमन माइंड ने सोचना खुद से शुरू किया, तो फिर साइंस भी खुद से आना शुरू होगी। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी खाली हम सिर्फ ये आर्ट, आर्किटेक्चर, पोइट्री, फिलोसफी की बात नहीं करेंगे। वी आर ऑल्सो डीलिंग विद द पॉलिटिक्स and literature, which was largely influenced by the rediscovery of ancient Greek and Roman text. Yes, Roman literature was also very rich literature. I'm so sorry, मैं इसका नाम लेना भूल गई थी। तो जाहिर है बेटा जब ये रोमन, ये ग्रीक, ये तुर्क टेक्स्ट कि जब रीडिस्कवर किया गया, जाहिर है इसके जब स्कॉलर्स आए अपने साथ अपना रिच हिस्ट्री और लिटरेचर लेकर आए, तो जब इसको रीडिस्कवर किया गया तो इन एरियाज़ में इस पीरियड में ट्रांसफॉर्मेशन आई। इस पीरियड में इन एरियाज़ में जो मैंने आपको बोला बेहतरी आई, इम्प्रूवमेंट आई। और इसमें क्या कहा था, द फ्लड ऑफ ग्रीक लिटरेचर विच द न्यू आर्ट ऑफ प्रिंटिंग कैरेट स्विफ्टली टू एवरी स्कूल इन यूरोप रिवील्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पोइट्री एंड फिलोसफी। जाहिर है कि प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया जब, जाहिर है ग्रीक लिटरेचर का फ्लड आया। आपको फ्लड का मतलब बहुत रिचर, बहुत ज़्यादा लिटरेचर, जब इतना ज़्यादा लिटरेचर आ गया तो फिर डिफरेंट स्कूल्स में इसको रिवील किया गया, डिफरेंट स्कूल्स में इसको एज अ करिकुलम में शामिल किया गया। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पोइट्री के, फिलोसफी के हमारे सामने, और प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। बुक्स प्रिंट होना शुरू हो गई, मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिंट होना शुरू हो गई। जब जाहिर है किताबचे और किताबें प्रिंट होना शुरू हो गई तो बस फिर तो गेम ही पलट गई ना। फिर तो जाहिर है कि इट वॉज द रीबर्थ। इसके बाद बेटा क्या हुआ, इससे पहले तो ये कॉन्सेप्ट्स नहीं थे, इससे पहले तो किताबें नहीं थी, इससे पहले तो प्रिंटिंग, इससे पहले तो इंसान, बाकी तो छोड़ दो ना, बाकी लिटरेचर को, बाकी आर्ट को तो छोड़ दो, इंसान इससे पहले बाइबल भी नहीं पढ़ सकता था। मतलब जो उनका रिलीजन था उस वक्त, तो वो लोग तो बेचारे अपना दीन नहीं पढ़ सकते थे, तो वो बाकी क्या पढ़ते, उनको तो उनकी बुक नहीं दी जाती थी, उनको तो बस जो बता दिया जाता था, अंधे गूंगे बहरे होकर उनको फॉलो करना होता था। इस वजह से चूँकि उस टाइम में ये था, तो ज़ाहिर इंसान तो बस्ती और अंधेरे में था, और अब इंसान रीबॉर्न हुआ था, उसका जहन रीबर्थ की तरफ आया था। इस वजह से ही तो इस पीरियड को द पीरियड ऑफ रीबर्थ कहते हैं, राइट। अब ये भी याद रखें कि खाली पूरी दुनिया पे थोड़ा एक जायज़ा डालते हैं ना, खाली तो लर्निंग में रिवाइवल नहीं हुआ था, खाली लर्निंग का रिवाइवल, और किस तरह ये जो हम लर्निंग का रिवाइवल करें, इसमें डिफरेंट किस्म की डिस्कवरीज डिफरेंट और फील्ड्स में भी आई ना। खाली इस फील्ड्स में तो खाली इस फील्ड में ही तो लर्निंग रिवाइव नहीं हुई थी, बहुत सारी फील्ड्स में, और बहुत सारी, जैसे विस्को डा गामा है, ये एक बहुत मैं आपको कहूँ पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरल है, सॉरी एक्सप्लोरर है। इसने बहुत दुनिया एक्सप्लोर किया, ट्रैवल किया। इसने क्या, ही वॉज द वन टू सरकम नेविगेट द अर्थ। इसने क्या किया था, इसने पूरी दुनिया का चक्कर, सरकम नेविगेट करना एक पॉइंट से का मतलब ये होता है सरकम नेविगेट करने का, कि आप एक पॉइंट से चक्कर लगाना शुरू करें
और वापस उस पॉइंट पे पहुंच जाएं। तो इसने पूरी दुनिया को सरकम नेविगेट किया था। दैट मीन्स कि ही टुक अराउंड अराउंड द अर्थ। बात समझ आ गई? तो जाहिर है जब ये इतना बड़ा राउंड ले रहा है तो कितनी डिस्कवरीज, कितने कल्चर्स, कितनी जगहों पे ये अपना कल्चर दे रहा है और कितनी जगहों से अपने कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स लेके आ रहा है, वो रिच हिस्ट्री, रिच लिटरेचर लेके आ रहा है। तो देखो ना, डोंट यू थिंक इट इज़ द रिवाइवल ऑफ लर्निंग? इसी तरह कोलंबस ने अमेरिका उस टाइम में, इट वॉज ड्यूरिंग द रेनेसां टाइम, द रेनेसां एज व्हेन अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड। इससे ज़्यादा बड़ी, अब वो कहते हैं ना कलमन के लिए इशारा काफ़ी है, इससे बड़ी क्या डिस्कवरी हो सकती है, इससे बड़ी क्या रीबर्थ हो सकती है, राइट? इसी तरह कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम डिस्कवर किया है, जिससे कि विच प्रिपेयर्ड द वे फॉर गैलीलियो। ज़ाहिर है गैलीलियो ने टेलीस्कोप में कितनी इंप्रूवमेंट्स की और भी बड़े काम किए। तो ज़ाहिर है कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम, इस टाइम में सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया गया था रेनेसां पीरियड में। अगर आपसे कोई पूछे आपको थोड़ी सी शौकी मौखी मारनी है तो आई हैव गुड पॉइंटर्स फॉर यू, राइट? और इसी टाइम में आप देखो कि फिर जाहिर है कि जब सोलर सिस्टम डिस्कवर हो तो उसके बाद फिर गैलीलियो ने डिफरेंट जो अपने काम किए हैं, इम्प्रूवमेंट्स लाया टेलीस्कोप्स में और जो इसी तरह मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि बुक्स वर प्रिंटेड, फ़िलासफ़ी, साइंस एंड आर्ट वर सिस्टमाइज। ज़ाहिर है फ़िलासफ़ी का अपना एक सिस्टम बन गया था, साइंस का अपना, आर्ट का अपना। ज़ाहिर है उसकी किताबें छपना हो गई थी, एज एन सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गई थी ये चीज़ें, जो कि पहले तो तसव्वुर भी नहीं था इनको पढ़ने का। इनको क्या, रिलीजन को कोई नहीं पढ़ सकता था। तो आप देख रहे हैं कि कैसे फ्रॉम द एज ऑफ डार्कनेस इट इज़ अ मूवमेंट टूवर्ड्स द एज ऑफ इनलाइटमेंट। दिस मूवमेंट इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ रेनेसां और द मूवमेंट ऑफ रेनेसां। बात समझ आ गई बच्चे? अब ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी। मैं उस वक्त से चर्च कह रही हूँ, उस वक्त से कैथोलिक कह रही हूँ। जाहिर है जहन में क्वेश्चंस आए होंगे, इसको अभी क्लियर करते हैं। इन इंग्लैंड देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनेसां, when King Henry VIII made himself the head of the Church of England, bringing church and state together. He cut all contact with the Catholic Church and the Pope in Rome, part of a reaction against the Catholic Church in many parts of Europe. Therefore, Protestantism became more and more important and prominent and gave a whole new vision of man's relation with the God. बेटा कहते क्या है यहाँ पे हमारे पास कि एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज आया था रेनेसां पीरियड में इंग्लैंड में, और वो ये था कि अगर आपको मैं बताऊँ ना बेटा, अब ज़रा मिडिल एजेस की तरफ जाते हैं, आपको लेकर जाती हूँ द एज ऑफ डार्कनेस की तरफ। आप या वहाँ वो टाइम था जिसमें जो चर्च था उसको अथॉरिटी माना जाता था। बादशाह वॉज नॉट द अथॉरिटी, बादशाह की जो महल है दैट वॉज नॉट द अथॉरिटी, चर्च वॉज द अथॉरिटी। और जो चर्च का हेड जिसको पोप कहा जाता है, ही वॉज द अथॉरिटी। कहा यह जाता था कि जो पोप है वो अल्लाह का सबॉर्डिनेट है ज़मीन पे, और वो अल्लाह के मैसेजेस ह्यूमन को देता है। तो इट वॉज नॉट the job of the king or the queen to decide rather than the pope. It was the pope's job. पोप जो ऑर्डर किंग और क्वीन को देता था वो फिर आगे लोगों को वो फॉरवर्ड करते थे। उस वक्त बाइबल वॉज लिटन इन लैटिन, और लैटिन वॉज द लैंग्वेज जो कि सिर्फ हायर अप्स, पोप और इनको पढ़ाई जाती थी। नॉर्मल मैन, नॉर्मल ह्यूमन काइंड, आप और मैं, कॉमन मैन जिसे हम कह सकते हैं, सॉरी नॉर्मल मैं कह रही हूँ, ही हैड नो नॉलेज ऑफ Bible, could not read or write or understand Bible, was not even given the chance to, सवाल भी नहीं पैदा होता था, was against the norms, the ethics, it was considered as a crime। तो जिसकी वजह से जो पोप बताता था, पोप कहता था मेरा लफ्ज़ नाउज़ुबिल्लाह खुदा का लफ्ज़ है और मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे अंदर में से खुदा बोल रहा है और आपको वो फॉलो करना है। और इस चर्च का, इस जैसे हम बेटा जैसे डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं ना, जैसे शिया सुन्नी होंगे और इस तरह बहुत सारे मसलक और वो हो गया, आई होप आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, लेकिन इसी तरह क्रिश्चियनिटी में भी कैथोलिकिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म है। अब कैथोलिकिज्म जो हमारे पास आ जाता है वो कैथोलिक चर्च थी, और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए ये कैथोलिक चर्च का कॉन्सेप्ट था। अकॉर्डिंग टू दैट पोप इज़ द हेड ऑफ दिस स्टेट, पोप इज़ द हेड ऑफ द चर्च, एंड वट एवर पोप सेज पीपल हैव टू ओबे, बिकॉज ही इज़ ट्रांसेंडिंग या ही इज़ ब्रिंगिंग डाउन द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ लॉर्ड, एंड पीपल हैव टू ओबे इट। ओनली ही कैन अंडरस्टैंड द बाइबल, ओनली ही हैज़ द नॉलेज ऑफ द बाइबल। अब इस बात, जाहिर है कुछ टाइम तक तो लोग इस डार्कनेस में रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद इसके ख़िलाफ़
पूरे यूरोप में रिएक्शन खड़ा हो गया, क्योंकि उस वक्त यूरोप का जो मेन चर्च था और जो मेन पोप था, जो बड़ा बड़ा चर्च और बड़ा पोप, जो सबका हेड था और हेड चर्च था कैथोलिक चर्च, वो उस वक्त रोम में था। तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होना शुरू हो गया, और एहतजाज ये होना शुरू हो गया कि खाली पोप को ही नहीं समझ आनी चाहिए, ह्यूमन को भी, कॉमन मैन काइंड को भी बाइबल पढ़ने और लिखने की तमीज़ होनी चाहिए। सॉरी, लिखने की नहीं, सॉरी, पढ़ने की समझ होनी चाहिए। आई एम सो सॉरी। कि वो पढ़ सके और वो समझ सके, और कॉमन मैन अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट भी कर सके। तो इस ज़ाहिर है कि चूँकि ये जो अप्रोच थी ये थोड़ी सटल, थोड़ी रिलैक्स्ड थी, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और स्ट्रिक्ट नहीं थी एज़ कम्पेयर टू द कैथोलिक अप्रोच या एज़ कम्पेयर टू द कैथोलिक चर्च। तो चूँकि ये रिएक्शन कैथोलिज्म के ख़िलाफ़ था, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट था, तो इसलिए इस रिएक्शन और इस सेक्ट को हम प्रोटेस्टेंटिज्म या प्रोटेस्ट, और इसकी जो चर्चेस थी बाद में उनको हम प्रोटेस्टेंट चर्च कहते थे। ठीक है, तो ये अब जंग हो गई थी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। इस जो एयर चली थी हैवी सी बिटवीन द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स, इसमें क्या किया उस वक़्त के जो हेनरी 8 था, इंग्लैंड में उस वक़्त हेड था, उसने अपने आप को चर्च का हेड बना दिया इंग्लैंड की। रही है, सही है। अब चूंकि वो चर्च का भी हेड है और स्टेट का भी हेड है, तो उसने पोप का इख्तियार ख़त्म कर दिया। हेनरी 8 ने कहा कि पोप का कोई काम नहीं है चर्च के साथ, या पोप का कोई काम नहीं है, एंड इट इज़ द किंग हु हैज़ द अथॉरिटी। तो अब हुआ क्या, क्योंकि किंग तो ज़ाहिर है स्टेट का हेड है, पोप हमारे पास चर्च का हेड है, और चर्च का हेड स्टेट के हेड से बड़ा होता है, सम हाँ वो स्टेट को ही कंट्रोल करता है। अब हेनरी ने ये चीज़ ख़त्म कर दी इंग्लैंड में, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया हेड ऑफ द चर्च। तो चूँकि वो हेड ऑफ द चर्च भी था और वो हेड ऑफ द स्टेट भी था, तो इस तरह उसने चर्च और स्टेट को एक साथ कर दिया, टुगेदर वो ले आया। और उसने तमाम जो उसका राब्ता था, सारे कांटेक्ट था रोम में कैथोलिक चर्च के साथ और पोप के साथ, वो ख़त्म कर दिया। और ही गेव अ होल न्यू विजन ऑफ मैन्स रिलेशन विद गॉड। उसने ये कहा कि इंसान का अपना ताल्लुक़ है खुदा के साथ। एवरी मैन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड बाइबल। उसके बाद बाइबल इंग्लिश में भी लिखी गई, बाइबल को समझा भी गया, हर इंसान का अपना ओपिनियन, अपना उस पर पर्सपेक्टिव भी बना है। इस सारी अप्रोच को प्रोटेस्टेंट अप्रोच कहते थे। प्रोटेस्टेंटिज्म कहते हैं इस मूवमेंट को, जिसकी वजह से प्रोटेस्टेंट चर्चेस भी बने और फिर प्रोटेस्टेंट फॉलोअर्स भी बने, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रोटेस्टेंट अप्रोच, द किंग और क्वीन बिकेम द ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ हु वॉज क्लोजेस्ट टू गॉड। के किंग और क्वीन अकॉर्डिंग टू हेनरी एक ऐसा इंसान बना जो अल्लाह के करीबी है, राइट। एंड और उसके बाद क्या होगा, ही विल, मतलब कहने से मुराद ये कि वो किसका सरबराह है, जो उसके बाद की ह्यूमन काइंड है, या जितने भी जानवर हैं, या जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनका सरबराह किंग है, और किंग का सरबराह खुदा है। और किंग ने खुदा का मैसेज इंसान को देना है, लेकिन ऐसे नहीं कि उसको समझ बूझ ना दे। दैट मीन्स के they can understand Bible, they can interpret Bible and do all. तो अब पोप के अकॉर्डिंगली जो कैथोलिक सिस्टम है, जो कैथोलिक व्यू पॉइंट है, जो कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि पोप इज़ द हेड ऑफ द चर्च एंड सबॉर्डिनेट ऑफ गॉड, द सबॉर्डिनेट ऑफ लॉर्ड ऑन द लैंड, एंड ही विल गिव यू द वर्ड ऑफ द गॉड, राइट। कि वो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचाएगा, नाउज़ुबिल्लाह, और उसको ये सिर्फ अल्लाह की बात समझ आएगी, और नॉर्मल इंसान को दीन पढ़ने की, समझने की, बाइबल पढ़ने समझने की कोई इजाज़त नहीं, और ना क्वेश्चन कर सकता है। जबकि अकॉर्डिंग टू द प्रोटेस्टेंट अप्रोच, अब चूँकि हेनरी किंग बन चुका है चर्च का भी और स्टेट का भी हेड, तो वो अल्लाह का एक वो है, अल्लाह की खुदा के करीबी इंसान है, और उसका काम है खुदा के दीन को खुदा के लोगों के पास लेकर जाना, और वो खुदा के लोगों का सरबराह है, खुदा के लोगों का और खुदा की तमाम मखलूक का, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं, एवरी लिविंग बीइंग। लेकिन
वो जो बाइबल है उसको लोगों की रीच में रखेगा, लोग उसे पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, इवन क्वेश्चन कर सकेंगे। ये प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट कहता है, ठीक है बेटा। तो वहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो गया। तो ऑलवेज रिमेंबर के जो कैथोलिसिज्म था वो मिडिल एजेस में जो डार्क पीरियड था, डार्कनेस का टाइम था, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। जबकि इंग्लैंड में ड्यूरिंग द रेनेसां पीरियड, इट वाज द रेनेसां पीरियड व्हेन दिस प्रोटेस्टेंटिज्म, व्हेन दिस अप्रोच, व्हेन दिस form of this sect of church or this sect of their religion became more and more prominent and important, right? And it was started by, according to the dates, Henry VIII, राइट। इसके बाद जो बेसिक हमें इस सब से समझ आई है, इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से, वो यही है कि द एसेंस ऑफ दिस मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट? द रेनेसां मूवमेंट। ज़ाहिर है ये तहरीक चली थी, एक मूवमेंट चली थी जिसे हम कहते हैं रेनेसां की एज। तो इस मूवमेंट का एसेंस क्या था? दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स, के आदमी ने अपने आप को डिस्कवर किया है और अपने गिर्द की दुनिया को डिस्कवर किया। उसने ये पहचाना है कि अदर देन द रिलीजन, अदर देन द हिस्ट्री, अदर देन द एग्रीकल्चर, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो उसको डिस्कवर करने हैं, बहुत एस्पेक्ट्स हैं, बहुत डायमेंशंस हैं। एंड दैट मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपनड हिज आईज एंड सीन, कि वो इंसान कि कब से अंधेरों में था, कब से उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई थी, अचानक इस मूवमेंट की वजह से, अचानक इस पीरियड में, इस एज में, रेनेसां में उसकी आंखों से पट्टी हटी और उसने देखा और अपने गिर्द की दुनिया को फिर एक्सप्लोर किया और उसकी फिर कोई लिमिट नहीं रही। So that was all about this lecture. I hope you have a little know-how of the background of Renaissance period. Still, मेरे बच्चों, if there's any question, you can comment down below. You can write it with yourself for the next class. जब हम physically present होंगे class में, and you can ask them. And any suggestion, कोई मशवरा है, कोई suggestion है, you can also comment down below. With that, thank you so much and have a very good night. Thank you. Bye.